Everyone, I'm Ranveer Kumar, the Faculty of English. In this video section, I'm going to tell you there are many students who do not speak English. What is the reason behind? What is the causes? As an Indian, I want to tell you there are many students who are excited to have a lot of grammar, to learn English, to speak English. But as far as my survey is concerned, as far as I have seen, there are many people, foreign people, Indian people who are scholars, who are industrious, they do not care about grammar to speak English. But in my local areas, there are many people, there are many students who think about grammar before speaking English. As we know that whenever you speak Hindi, you do not feel nervous, you do not hesitate to speak before anyone else. Why? You have got over Hindi. This is the reason you never ever translate Hindi inside your mind. This is the reason you never ever hesitate and you do not feel nervous to speak Hindi before your neighbor and other state people. But when English comes before you, you have got a lot of nervousness to speak English before anyone else. Do you know that whenever you are trying to speak English, do not care about grammar, such as Hindi, you do not care about grammar to speak. So if you have got good word stocks, so you can speak English easily anywhere, either in our country and other country. So you should have good vocabs, good word stocks. So in this video section, I'm gonna give you such a word, and I'm gonna make you promise. And there are many people who don't know the meaning of which I'm gonna give you. It is different kind of word which can help you to use in daily life and other areas. So I'm gonna start the first different kind of vocabs which can help you a lot to speak English. Okay, I should start such a word which can help you in daily life, and these words are so important to use, and I'm gonna tell you there are few people who know the meaning of these words. First, squat, पालथी मारकर बैठना. Squat, पालथी मारकर बैठना. Next, trip, ठोकर खाना या लड़खड़ाना. Next है kneel, not kneel, kneel, घुटने के बल बैठना. नेक्स्ट है स्नोर, खराटा लेना. स्नोर, खराटा लेना. नेक्स्ट है हिकअप, हिचकी. इसमें आप लगा दीजिए टेकिंग हिकअप, तो हिचकी लेना. बर्प या बेल्च, ढकार. टेकिंग, गेटिंग या हैविंग. बर्प या बेल्च, ढकार लेना. पैंट, हाफना. हाफना, पैंट, PANT, हाफना. वर्मिलियन, सिंदूर. जो शादी के समय या शादीशुदा औरत हमेशा अपनी मांग पर क्या लगाती हैं? सिंदूर, जिसका मीनिंग होता है वर्मिलियन. नेक्स्ट है स्नीफ, सूंघना. स्नीफ, जैसे डर्टी स्मेल आता है तो हम लोग पहले क्या कहते हैं? सूंघते तब ना कहते हैं डर्टी स्मेल, तो स्नीफ. फिर नेक्स्ट है साई. साई, जिसका मीनिंग है लंबी सांस लेना. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है ना प्लीज साई, लंबी सांस लें. फिर है लेफ्ट फूड, जूठा खाना. जूठा, जैसे कोई खाना खाकर छोड़ दिया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यह जूठा खाना. दिस इज लेफ्ट फूड. फिर नेक्स्ट है रॉटेन फूड. रॉटेन फूड, सड़ा खाना. सड़ा खाना. फिर है बीटर, कड़वा. जिसमें स्वाद ना हो, अलग टाइप का स्वाद हो तो कहते हैं बीटर, इसमें जोड़ दीजिएगा. फूड तो कड़वा खाना. जूसी मतलब जूसी, रसीला.
जूसी एप्पल, रसीला आम। फिर नेक्स्ट है मेल्टेड, पिघला हुआ, द आइस इज मेल्टेड या द आइसक्रीम इज मेल्टेड, आइसक्रीम पिघला हुआ है। फिर नेक्स्ट है यन, यन मतलब जमाई या उबासी लेना, जैसे इन द मॉर्निंग टाइम व्हेन आई लीव द बेड, हम लोग वहाँ पर कहते हैं ही इज हैविंग या टेकिंग यन, वो क्या कर रहा है, जमाई ले रहा है। फिर नेक्स्ट है डिलीशियस फूड, जैसे आप किसी के रिसेप्शन में जाते हैं तो वहाँ खाना अच्छा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इज डिलीशियस फूड, यह एक स्वादिष्ट खाना है। फिर नेक्स्ट स्वीट, जैसे हम लोग कुछ स्वादिष्ट चीज़ लेते हैं जिसमें ज़्यादा मीठापन हो तो हम लोग यूज करते हैं स्वीट का। चलिए नेक्स्ट है स्टिकी, स्टिकी चिपचिपा, स्टिकी चिपचिपा। फिर नेक्स्ट है राइजोल, राइजोल समोसा, जो खासकर बिहार में या अदर स्टेट में समोसा खूब चलता है। फिर नेक्स्ट है फनल केक, जलेबी, है ना, जलेबी हम लोग जैसे नेशनल फेस्टिवल होता है इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, तो उस समय हम लोग फनल केक जरूर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने स्टूडेंट्स को भी। फिर नेक्स्ट है पाई, कचौरी, जो हम लोग मॉर्निंग में खाते हैं। फिर है सेमोलिना, सेमोलिना, सेमोलिना सूजी। फिर नेक्स्ट है पॉइंटेड गर्ड, पॉइंटेड गर्ड या ट्रीचो, है ना, फर्स्ट है सेकंड है, दोनों का हिंदी सेम है, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे व्यक्ति को परवल का मीनिंग नहीं आता है, तो सिंपल भाषा में इसे कहा जाता है पॉइंटेड गर्ड, पॉइंटेड गर्ड का हिंदी है परवल। या बहुत सारे व्यक्ति जो थोड़ा मोड़ा इंग्लिश जानते हैं तो आपसे हमेशा परवल का इंग्लिश जरूर पूछेंगे, तो इसका स्पेशल मीनिंग होता है, यहाँ से सीखिए ट्रीचो, TRI ट्रीचो, है ना, ट्रीचो थैंसेसिस, थैंसिस ऐसे पढ़ सकते हैं, ट्रीचो थैसिस, ट्रीचो थैसिस, ट्रीचो थैसिस, ट्रीचो थैसिस डायोका, डायोका, ट्रीचो थैसिस डायोका, ट्रीचो थैसिस डायोका हिंदी होगा परवल, या पॉइंटेड गर्ड का हिंदी होगा परवल। फिर नेक्स्ट चलते हैं मिक्स्ड, मिक्स्ड गर्ड, रायता, जो शादी के समय हम लोग हमेशा लेते हैं, थोड़ा सा रायता दीजिए, उसे कहते हैं मिक्स्ड कर्ड का हिंदी है रायता। फिर नेक्स्ट है क्रिस्पी सॉल्टी, क्रिस्प सॉल्टी, क्रिस्प सॉल्टी, इसका हिंदी है नमकीन। हम लोग कहते हैं ना कुछ नमकीन लेके चलाओ या कुछ नमकीन हो जाए, तो हम लोग यूज करते हैं क्रिस्प सॉल्टी। फिर नेक्स्ट है वे, WHEY, मट्ठा, जो दूध से बनाया जाता है, मट्ठा खास के गाँव में ज़्यादा चलता है। फिर नेक्स्ट है केक, टिक्की, जैसे हम लोग जाते हैं चाट खाने के लिए तो हम लोग कहते हैं टिक्की का चाट दीजिए, तो हम वहाँ पर यूज करेंगे केक का मतलब हुआ टिक्की। फिर नेक्स्ट है कंडेंस्ड, कंडेंस्ड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क, खोआ, जो दूध को फाड़ कर निकाला जाता है उसे कहते हैं कंडेंस्ड मिल्क, खोआ। फिर नेक्स्ट है बटर मिल्क, बटर मिल्क से हम लोग हिंदी कहते हैं छाछ, है ना, छाछ, ये गांव में ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे छाछ, खोआ, मट्ठा और रायता अधिकतर गांव में ही यूज किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है वाटर बॉल्स, वाटर बॉल का जैसे नाम देते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो खासकर लड़कियां लोग वाटर बॉल बहुत ज़्यादा ही खाते हैं, जिससे मतलब मीनिंग होता है पानी पूरी या गोल गप्पा। फिर नेक्स्ट है क्लेरी फ्रेड, क्लेरी फर्ड मिल्क, क्लेरी फर्ड मिल्क, क्लेरी फ्रेड कहिए, फर्ड कहिए, क्लेरी फर्ड मिल्क मतलब घी, जो पंजाबी का खासकर वो कोई भी खाना खाएं, रोटी सब्जी हो, दाल चावल, उसमें घी लेना वो जरूर भूलते नहीं है, सो बिना घी के वो लोग खाना भी नहीं खाते हैं। फिर नेक्स्ट है बर्न, गुलगुला, एक आता है गुलगुला टाइप का जिसमें वो हल्का नमकीन और हल्का मीठा दोनों होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। फिर नेक्स्ट है पैन केक, मलपुआ, मलपुआ एक और स्पेशल मीनिंग है जिसको बहुत सारे व्यक्ति नहीं जानते, इसका नाम है वर्मिलियन, वर्मिलियन, जिसको हम लोग कहते हैं
सिंदूर, क्या कहते हैं? सिंदूर। वर्मिलियन, यहां डबल एल भी हो सकता है, वर्मिलियन, है ना। तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, इसको पॉज कर दो। These are the different vocabs which I have given you through my YouTube channel. So at any cost, you must remember vocabs. If you do not have vocabs, frankly, I'm telling you, you do not speak English. You always feel hesitation. You always feel nervousness to speak English because India does not speak English only, because India has got different kind of languages which we use in our daily life, like Maharashtra, Kolkata, Bhojpuri, Maghi, and etc. and etc. This is the reason we always get nervousness to speak English. If you want to improve your English, if you want to speak English, you should have good vocabs, good word stocks. Otherwise, I'm going to make you sure, and you must assure that you do not speak English. So these are the different kind of words, and I'm 110% sure there are few people who have these kind of words in their mind and in their dictionaries, in their textbooks. So you must remember these words. Thank you.